Hey, hello guys. In this video, we will discuss about HCl. So, welcome to Adhi Learning channel. In this video, we will discuss about HCl. We will learn about HCl, what HCl is, how HCl is collected, how HCl is prepared, and all that. So, let us start. So, let us first see the structure of HCl. This is HCl. If you can see, there is two words written: hydrogen chloride and now hydrochloric acid. Okay, so but in the between it is written HCl. So what is HCl? Hydrogen chloride or hydrochloric acid? The answer is simple. If we HCl is a gas. If we mix that gas in water, we get hydrochloric acid, or we can say hydrochloric acid is a aqueous HCl gas, aqueous form HCl gas, right? So these are my handwritten notes. So according to the syllabus, first we have to prepare HCl in laboratory. So how do we prepare HCl in laboratory? Okay, so you can see on your screen that there's written NaCl plus H2SO4 CONC means concentrated. Okay, and the temperature is about less than 200 degrees Celsius, and the products we get is NaHSO4. What is it? Sodium bisulfate. And we get HCl. This is not hydrochloric acid. This is HCl gas. If we mix this gas with water, we get hydrochloric acid. So if you can see this, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो H है NaHSO4, जो ये H है एक कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ, राइट? सो अगर आप अपना टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस लेके ये इसको करते हो आप एक्सपेरिमेंट को, सो यू विल गेट सोडियम सल्फेट. मीन्स हियर यू कैन सी देयर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम and you will get HCl gas. So how HCl gas is collected? HCl gas is collected by upward displacement of air. What does it mean? So it simply means that HCl is heavier than air. So when here यहाँ पे air और यहाँ पे HCl, right? So अगर HCl is collected by upward displacement of air, air कहाँ जाएगी? Upward, राइट? तो HCl कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड, राइट? सो जब एयर अपवर्ड जाएगी, डिस्प्लेस होगी, सो HCl जो है वो डाउन हो जाएगी. वाई? बिकॉज HCl इज लाइटर देन एयर. सॉरी, HCl इज हैवियर देन एयर. सो जो HCl गैस है वो नीचे आ जाएगी और हवा जो है, एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी. ओके, सो in the here is written H2SO4 in the Thistell funnel and flask with NaCl. So next question is, why we use H2SO4? Why? Well, the answer is simple. We know that H2SO4 is a good drying agent. Okay, so H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि जो मॉइस्चर है, प्रोडक्ट्स में जो मॉइस्चर मिला है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. This is the reason we use sulfuric acid in this process. H2SO4 is a drying agent, you can see on the screen. And precautions: temperature should be 200 degrees Celsius, little below little level. अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो आपको बाइसल्फेट में आंसर बाइसल्फेट प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर रखते हो तो आपको सोडियम सल्फेट आंसर मिलेगा. सो लेट्स proceed. So these are some chemical properties of HCl. HCl gas is non-combustible. Thermal dissociation of HCl is 500 degrees Celsius or above 500 degrees Celsius. What does it mean, thermal dissociation? So thermal means heat and dissociation means split. Okay, so heat और split से आप you can think of कि अगर हम लोग टेम्परेचर जो है थर्मल मीन्स हीट हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं, सो जो HCl है उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं H2 और Cl2 में, राइट? सो आप देखो यहाँ पे, सो आपका
अगर आप इस टेम्परेचर को ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू लिथमस बिकम्स रेड। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिथमस। ओके, व्हाट इज लिथमस? लिथमस एक टाइप का पेपर होता है, राइट। पेपर होता है, सॉल्यूशन भी बनता है उसका। सो वो क्या करता है कि देखो, जब लिथमस को हम लोग किसी एसिड में डालते हैं, राइट, सो जो लिथमस का कलर है वो हो जाता है रेड, गुस्से से रेड हो जाता है, राइट। और जब हम लोग उसको कोई बेस सब्सटेंस में डालते हैं, लाइक NaOH एक बेस है, अल्कली में डालते हैं, तो उसका जो कलर है वो हो जाता है ब्लू, राइट। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग लिथमस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि जो लिथमस है वो बन जाएगा रेड। अगर पहले से ब्लू था तो अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस it has given that we have to study the action of ammonia on NH3. So you can see on your screen action of ammonia in on NH3, right, on HCl. Okay, so आप ये रिएक्शन देखो, HCl और NH3 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ओके, सो ये सब जो अभी रिएक्शंस आएंगे, ये सब very important reactions. It comes in exam as balance equation, word equation. Okay, so just you have to learn the formula of this. Okay, if we take metal and we react it with HCl, what we get is metal chloride and hydrogen gas. Suppose let us take the example of sodium. If we react sodium with HCl, we get sodium chloride and hydrogen gas. Okay, so if we react metal oxide and HCl, what we get is water and the chloride part. Okay, as it was in previous. Okay, here we take example magnesium chloride and HCl gas. What we get is magnesium chloride and H2O. Okay, so कैल्शियम क्लोराइड एंड HCl, कैल्शियम ऑक्साइड एंड HCl हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और H2O मिलेगा। और हम लोग हाइड्रोक्साइड के साथ लेंगे। ओके, NaOH एक हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हो, और उसको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, सो व्हाट यू विल गेट इज द मेटल क्लोराइड एंड द वाटर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। या अगर आप बाइकार्बोनेट्स और या कार्बोनेट्स मीन्स CO3 एंड बाइकार्बोनेट्स मीन्स HCO3, राइट। अगर आप कोई कार्बोनेट के साथ आप HCl को प्रिपेयर करते हो, सो व्हाट यू विल गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्पेक्टिव क्लोराइड एंड वाटर। ओके, सिंपली विद द सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स। ओके, आपको वही मिलेगा, बस वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। ओके, सो अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाले हैं, एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट ऑन HCl। सो देखो, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट विल गेट इज सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, अब लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, व्हाट विल गेट इज लेड क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने देखा ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 10 ईयर्स को अगर मैंने एनालाइज किया था। सो हियर यू कैन सी दिस इज द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कॉल्ड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये इसको मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले इसका सारे पार्ट्स को देख लेते कि है क्या एग्जैक्ट। ओके, सो अगर आप देखोगे ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ब्लू लिथमस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में मिला हुआ है सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जेट ट्यूब लिखा हुआ है, वो ट्यूब क्या करेगी, वो लिथमस को ऊपर लेके जाएगी, राइट। और यहाँ पे ड्रॉपर लगा हुआ है कि अगर जितना भी ऊपर अगर पानी ज़्यादा भर जाए तो उसको खोल के पानी नीचे गिरा सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको
और ऊपर जाओगे आप, वहाँ पे अभी रेड लिटमस सॉल्यूशन अभी है नहीं वहाँ पे, मैं बताऊँगा क्यों नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे आप रेड फाउंटेन लिखा हुआ है, ओके, और वहाँ नोज़ल है, नोज़ल से क्या होता है, स्प्रे टाइप का निकलता है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो ये जो आपका स्पेरिकल टाइप का शेप है ऊपर में टॉप यहाँ पे, ये स्पेरिकल टाइप का शेप जो है, यहाँ पे हमारी HCl गैस है, ओके, HCl गैस है, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जब हम लोग ये ब्लू लिथमस को ऊपर जेट ट्यूब में भेजते हैं, ओके, सो ये ब्लू लिथमस HCl गैस के साथ रिएक्ट करके HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, और वो जो सॉल्यूशन है, ब्लू लिथमस का सॉल्यूशन है, वो रेड बन जाता है। तो ये रेड लिथमस इसलिए लिखा है क्योंकि वो ब्लू लिथमस का सॉल्यूशन रेड बन जाता है, यहाँ कोई अलग से हम लोग रेड लिथमस नहीं डालें, ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसका एकदम कलरफुल डायग्राम देख लो आप, ये सॉल्यूशन हम लोग ऊपर भेजे, तो ये रेड हो गया क्योंकि स्पेरिकल का जो शेप है वहाँ पे हमने HCl गैस रखी हुई है, ओके। सो ये एक और डायग्राम है, इससे हमको पता चलेगा कि HCl गैस इज़ हैवियर देन एयर। सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, कैंडल है, ओके, यहाँ पे एक कैंडल है, कैंडल और एक छोटा सा ट्यूब टाइप का है, और उसकी ट्यूब के ऊपर में HCl, ड्राई HCl गैस, ड्राई मतलब वहाँ पे उस HCl में मॉइस्चर नहीं है गैस में, अगर मॉइस्चर हो जाता तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लग जाता, ओके। सो ड्राई HCl गैस है वहाँ पे, ओके। सो जब हम उस डब्बे को उस कैंडल में डालेंगे, और कैंडल देखो आप जल रहे हैं, ओके, कैंडल में डालेंगे, लेकिन उससे पहले देखो कि कैंडल जल रहा है, मतलब वहाँ पे अभी हवा है, ओके। सो जब उसको हम लोग डब्बे को कैंडल में डालेंगे, सो क्या होगा कि जो HCl है, HCl हैवियर है हवा से, तो वो नीचे आ जाएगी, और हवा जो है वो डब्बे के ऊपर चली जाएगी जहाँ पे अभी फ़िलहाल HCl गैस है, ओके। सो उसके बाद क्या होगा कि जो बत्ती है बुझ जाएगी, द कैंडल बर्न, ओके। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो HCl है वो हैवी है, इससे हवा से, ओके। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि HCl को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। दी टू एक्सपेरिमेंट्स, दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो रिएक्शंस है, जितने भी मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस है ऑलमोस्ट, जो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके बैलेंस इक्वेशंस में आते हैं, ओके। और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये थर्मल डिसोसिएशन और लिथमस वाली इंपॉर्टेंट है, नॉन कंबस्टिबल, ठीक है, एक्वस। और ये देखो ये एक्शन ऑफ अमोनिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो अभी, ओके। और यहाँ पे ये HCl कैसे कलेक्ट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा बैलेंस बॉडी इक्वेशन, पूछेगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl, ओके। सो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि HCl गैस का प्रिपेयर कैसे करते हो, ऑल अबाउट HCl गैस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू।